welcome to SLD online class 6th standard mathematics. Today in this video we are going to learn about the reciprocals of multiplicative integers and inversion, okay, and division of the fraction. We are going to learn in this how to write the reciprocal of the other number of the multiplicative inverse. इनवर्स में लिखना है आपको क्या आपको नंबर दिया रहेगा, जैसे फ्रैक्शन में भी नंबर दिया गया तो इनवर्स में लिखना है. इनवर्स मतलब उसका उल्टा. अभी जो डिनोमिनेटर में है वो अभी 5/6 है. 5 क्या है न्यूमिनेटर में और 6 क्या है डिनोमिनेटर. उसका इनवर्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे 6/5. जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में जाएगा और जो न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आएगा. आज हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे. तो when a product of two number is 1, each of the number is the multiplicative inverse of or reciprocal of the other. If the product is 1 of any two number, then each number is the reciprocal of its own of other number. एक दूसरे का नंबर अगर प्रोडक्ट एक है तो जो इन आंसर है तो एक दूसरे का नंबर जो है वो खुद का दूसरे का रेसिप्रोकल कहा जाता है. और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे. हमें व्हेन वी आर डिवाइडिंग द नंबर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर. वी विल इनवर्स द नंबर एंड वी विल मल्टीप्लाई इट. To divide a number by a fraction is to be multiply it by the reciprocal of the fraction. What we are going to divide any number, we are going to multiply it by changing it into the reciprocal of inverse. Reciprocals or multiplicative inverse. What? First I will show you the example. First example 71/3. If we will write the reciprocal of this number, how we will write? We will write 3/71. This is the reciprocal. You have to note, you have to remember this. When the product of two number is 1, each of the numbers is the multiplicative inverse or reciprocal of the other number of the other. What? When the product of two number is 1, each of the number is the multiplicative inverse or reciprocal of the other. When the product is 1, then each of the number is the reciprocal of each other. For example, see here 5/6 into 6/5. Now when you will multiply 5 6 are 30 and 6 5 are 30. Here you will get 1. Then the product is 1. Therefore, the reciprocal will be the number is the each of the number is the reciprocal of the other number. Like this. क्या होता है यहाँ देखो 5/6 इंटू 6/5 है. आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 6 30 आएगा, 6 5 30 आएगा. तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, जो अभी यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 30 31 30 31 30 तो आपको 1 आएगा प्रोडक्ट. जब 1 आएगा प्रोडक्ट तो यहाँ आपको मालूम पड़ता है कि जो नंबर है एक दूसरे जो 5/6 है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. Note, to divide a number by a fraction
is to multiply it by the reciprocal of the fraction. What happened? The division of fraction. What first we have to to divide a number by a fraction is to be multiply it by the reciprocal of the fraction. The right side number we had to change it reciprocal and then we had to multiply it, then we will get the answer. See here for example क्या होता है, डिवाइड करते वक्त क्या करना है, जो राइट आपको दो फ्रैक्शन दिया फॉर एग्जाम्पल आपको डिवाइड करने के लिए दिए हैं, तो उसे डिवाइड करते वक्त जो राइट साइड का नंबर रहता है उसका रेसिप्रोकल चेंज करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है. जब आप रेसिप्रोकल चेंज करोगे जो डिवीजन का साइन रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा. चेंज करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमें मिलेगा. एग्जाम्पल 6 divided by 3/2. See here 6 by, there is no number in a denominator, then we will write it as a 1 divided by 3/2. We have to change this number, right side number we have to change the reciprocal of the right side number. 6/1 into, when we will change the reciprocal we will get the into sign, 2/3. Now we will multiply. Okay, see I can divide, 3 1s are 3, 3 2s are 6. Okay, 2 into 2 equals to 4. 4 is the answer. यहाँ पे देखो 6 डिवाइडेड बाय 3/2 दिया है, तो अभी 6 यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग कंसिडर करेंगे 1. 6/1 डिवाइडेड बाय 3/2. अभी जब हमें डिवाइड करना है तो हमें राइट साइड का रेसिप्रोकल चेंज करना, हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, राइट साइड का रेसिप्रोकल चेंज करना है. तो क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, तो 6/1 इंटू 2/3. अभी आप डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर देख सकते हो, अगर डिनोमिनेटर के कोई भी नंबर से न्यूमिनेटर डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर सकते हो. तो 3 से देखो 6 डिवाइड होगा, 3 के टेबल्स में 6 आता है, 3 1s are 3 2s are. ओके, तो 2 इंटू 2 मिला इक्वल्स टू 4. ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन का आंसर मिलेगा. Now practice set. First question, write the reciprocal of the following number. We are going to write the reciprocal of the following number. First number is 7. The reciprocal will be, see, 7, 11/3, third one 5/13, and fourth one 2. I will write here, I will form a column to write the answer, number and reciprocal. My first number is 7, second number is 11/3, third number is 5/13, and fourth number is 2. We will for in the column, in a table I am going to write. See, the reciprocal is of 7. In a 7, see here they had not given the denominator, so we will consider as a denominator as a 1. When we will write the reciprocal of the 7/1, we will get the 1/7. Of reciprocal of 11/3 is 3/11, and reciprocal of 5/13 is 13/5. And here also reciprocal, in the number they have given only 2, denominator they have not given anything, we will consider as a 1. When we will write in the reciprocal form, we will write 1/2. This is the reciprocal number.
आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो मैंने यहाँ टेबल फॉर्म किया है, तो टेबल में मैंने लिखा है नंबर और रेसिप्रोकल। नंबर क्या है, 7 है, 11/3 है, 5/13 है, 2 है। तो यहाँ पे देखो 7 में डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया है, तो अभी हमें जब रेसिप्रोकल हम चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमिनेटर में जाता है, न्यूमिनेटर का नंबर डिनोमिनेटर में आता है। तो मैं 1 करके कंसिडर करूँगी डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं दिया है, आपको 1 करके कंसिडर करना है। तो जब मैं लिखूंगी तो क्या होगा, उल्टा लिखना, डिनोमिनेटर का नंबर ऊपर और न्यूमिनेटर का नंबर नीचे रेसिप्रोकल में। तो 1/7 मिलेगा। उसके बाद 11/3 का रेसिप्रोकल रहेगा 3/11। 5/13 का रेसिप्रोकल है 13/5। 2/1 का 2 है यहाँ न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 वहाँ कंसिडर करूँगी। तो 2/1 का रेसिप्रोकल रहेगा 1/2। नाउ सेकेंड में, carry out the following division. See first question, 2/3 divided by 1/4. Now I will change the reciprocal of the right side fraction. See 2/3, when I will change the reciprocal, if I am okay, I want to multiply. First if I will multiply, then the reciprocal of the right side number should be changed. I will get 4/1. Okay, then I will multiply. 2 4s are 2 into 4 by 3 into 1. 2 4s are, you will get 8 and 3 1s are 3. दिस इज द डिवीजन आंसर। यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3 है डिवाइडेड बाय 1/4। तो 2/3, अभी मुझे डिवाइड तो मैं कर नहीं सकती, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना तो राइट साइड का जो फ्रैक्शन है वो मैं उसका रेसिप्रोकल चेंज करूँगी। कैसे लिखूँगी, 4/1 करके लिखूँगी। यहाँ 1/4 है तो रेसिप्रोकल में चेंज करूँगी, 4/1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज करके लेना है। तो 2 into 4, 3 into 1, you will get answer 2 4s are 8 and 3 1s are 3. Second sum is 11/12 divided by 4/7. See here 11/12, when I will change into the multiplication inverse, I am going to change the right side fraction, then I will get 7/4. Then 11 into 7 by 12 into 4. 11 7s are 77. 12 4s are 48. Our answer is 77 divided by 48. यहाँ देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 11/12 है और डिवाइडेड बाय 4/7, फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। तो 11/12 ली तो मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में चेंज करते वक्त जो यहाँ पे राइट साइड का फ्रैक्शन है वो इन्वर्स में चेंज होगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा। तो क्या होगा, 7/4 होगा। नाउ 11 into 7 into डिवाइडेड बाई 12 into 4. 11 7s are 44 आएगा और 11 7s are 77 आएगा, 12 4s are 48 आएगा। यहाँ पे देखो जो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में चेंज किया है 11 into 7 होगा, तो 11 7s are 77 होगा और 12 4s are 48 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 77/48। नाउ थर्ड में, there were 420 students participating in the स्वच्छता भारत
campaign they cleaned 42/75 per part of a town. सेवाग्राम what part of सेवाग्राम did each students clean if the work was equally shared by all. See, there were 420 students who were they took the participate in Swachh Bharat Abhiyan. In the Swachh Bharat campaign, they took the participate and they cleaned 42/75 part of the town. They had told you are going to find how much part did each student have cleaned. Answer: number of students. 420 students. Town cleaned equals to 42/75. Now we have to find this. How we will find 42/75 divided by 420? ऐसे आपको लिखना है. क्या दिया है? 420 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट लिया, तो 42/75 पार्ट क्लीन हुआ है. तो एक बच्चा कितना क्लीन किया है, तो क्लीन कितना किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें 42/75 डिवाइडेड बाय 420 करना है. तो अभी यहाँ पे देखो 42/75 डिवाइडेड बाय 420 है ना. यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, तो मैं क्या कंसीडर करूँगी? 1 करके कंसीडर करूँगी. तो अभी तो मुझे रेसिप्रोकल चेंज करना है, तो इंटू 1/420 आएगा. तो यहाँ देखो 42 इंटू 1/75 इंटू 420. तो अभी देखो 42 और 420 के 420 क्या है? 42 के टेबल्स में जाएगा. 42 1 जा 42 10 जा 420. ओके, तो क्या आएगा? 1/75 इंटू 10. जब आप 75 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा? 1/750. ये आपका आंसर है. तो therefore each students cleaned 1/750 part of सेवाग्राम. See here, यहाँ पे रेसिप्रोकल चेंज किया गया है. रेसिप्रोकल चेंज किया गया तो आपका आएगा आंसर 1/420. और 1/420 क्या है? 42 के टेबल्स में जाएगा. तो 42 1 जा 42 10 जा 420 आएगा. ओके, तो यहाँ मैंने डिवाइड किया है. डिवाइड करने के बाद 75 इंटू 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया है. 1/75 इंटू 10 आया, तो 1/75 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या आएगा? 750 आएगा. तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट कितना क्लीन किए? 1/750 पार्ट ऑफ द सेवाग्राम क्लीन किए हैं. तो यहाँ पे क्या इनवर्स जब हम चेंज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन साइन लिखना है, और हमें राइट साइड के नंबर का ही इनवर्स चेंज करना है. लेफ्ट साइड का नंबर नहीं चेंज कर सकते. लेफ्ट साइड का नंबर चेंज करेंगे फ्रैक्शन नंबर
तो वहाँ इन्वर्स नहीं आएगा, राइट साइड का नंबर चेंज करना है तो वहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। जो रेसिप्रोकल है उसका नाम दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स करके। तो जब हम वो नंबर चेंज करेंगे तो हमें इन्वर्स साइन यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन साइन डालना है, कोई भी डिवीजन, हम फ्रैक्शन को अगर हमें डिवाइड करने दिया है तो हमें वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला डालना है, इनटू डाल के वहाँ पे इन्वर्स चेंज करना है, तभी आंसर हमें मिलेगा। सो आई कंप्लीट हियर प्रैक्टिस सेट 13. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन यू द प्रैक्टिस सेट 14.